پاکستان میں گولڈ یعنی سونے کے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں اور حیران کن طور پر ان کی کل اماؤنٹ 600 بلین یعنی 600 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ ہم اس ویڈیو میں لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے پاکستان نے یہ 600 بلین ڈالرز کے گولڈ کے یعنی سونے کے جو ریزروز فائنڈ کیے ہیں، یہ کیسے فائنڈ کیے ہیں، یہ کہاں پر فائنڈ کیے ہیں اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ کیا آنے والے وقت میں پاکستان کے جو اوپر لونز ہیں، پاکستان کے اوپر جو ڈیفرنٹ اس ٹائم اکنامک کرائسز ہیں، کیا پاکستان اپنے اکنامک کرائسز اس گولڈ کے ریزرو سے حل کر پائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھیے گا۔ میرا نام علی عثمانی ہے، نیوز ود علی عثمانی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کل ایک بہت اہم خبر آئی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ پاکستان نے 636 یعنی 636 ارب ڈالرز کے گولڈ کے یعنی سونے کے ریزروز فائنڈ کیے ہیں تربیلا ڈیم کی اوپر۔ اس کے علاوہ جو انڈس واٹر جا رہا ہے اٹک کی طرف، وہاں پر بہت سارے جو ہے وہ سونے کے جو ہے ریزروز کو فائنڈ کیا گیا، جس سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اکانومی پہ اگلے 10 سے 15 سال پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ، بہت بڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے سونے کی جو قیمت ہے وہ ود دا ٹائم بڑھتی جا رہی ہے۔ سونا جو ہے وہ ایک ایسی ویلتھ ہے جو ود دا ٹائم انکریز ہوتا جا رہا ہے، اور ایز آف ناؤ یہ بہت ایک ریئر چیز ہے، ایک بہت جو ہے وہ قیمتی چیز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سونا، یہ سارے معاملات ہمیں کہاں پر جو ہے وہ ملے ہیں پاکستان میں، اور آنے والے وقت میں ریئر ارتھ منرلز کی طرح کیا امریکہ کی، کیا چائنا کی، یا کیا کسی اور ملک کی جو ہے وہ کمپنیز سونے کو ایکسٹریکٹ کر کے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کریں گی، اور پاکستان کو آنے والے وقت میں اس سے کیا امپیکٹ ہوگا۔ اب امپورٹنٹلی ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کا ایک بہت اہم ڈیم ہے جس کو کہتے ہیں تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم سے جو پانی گزر رہا ہے اور تربیلا ڈیم میں جو پانی آ رہا ہے اس پورے راستے میں جو ہے وہ سونے کے گولڈ کے ریزروز فائنڈ کیے گئے ہیں، اور ان کی کل مالیت 336 بلین ڈالرز کی ہے۔ اب ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حنیف گوہر صاحب۔ حنیف گوہر صاحب جو ہیں یہ چیئرمین ہیں اور یہ وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کل بڑا اہم، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے that extensive gold deposits have been discovered in the soil of Tarbela Dam with an estimate worth of 363 billion dollars. This discovery could potentially transform Pakistan economy سچویشن اف پراپرلی یوٹیلائز۔ تو ان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے اگر ان کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے۔ آگے حنیف گوہر صاحب کہتے ہیں کہ the discovery came after divers collected soil samples from the depths of Tarbela Dam. These samples were then tested in laboratories where the presence of the gold was confirmed. تو ہوا کیا، تربیلا ڈیم کی جو زمین ہے، جو ڈیپ واٹر ہے، جو ڈیپ زمین ہے، وہاں پر جو ہے وہ ڈائیورس نے جمپ لگائی۔ ڈائیورس نے کئی مہینوں یا کئی دنوں تک اس پوری جو مٹی ہے اس سوائل کو دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اس سوائل کے اندر سے کیا گولڈ دریافت ہو سکتا ہے، کیا گولڈ ایکسٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ واقعی اس زمین کے نیچے گولڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان گولڈ کو ابھی سے ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ایٹماسفیئر ہے، اس سے جو ڈیم کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ سو دا تھنگ از دیٹ کہ یہ کام جو ہے یہ بڑا تحمل مزاجی والا کام ہے۔ اس کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے وہ بڑی پرفیکٹ، بڑی ایکوریٹ اور بڑی مہنگی مشینری ہوتی ہے۔ تو میں آگے بات کروں گا کہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنے میں اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی GDP میں بینیفٹ دینے کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگے گا۔ بٹ ایز آف ناؤ جو ہمارے پاس انفارمیشن، جو ہمارے پاس سچویشن آ رہی ہے، یہ گولڈ کے ریزروز پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے اہم اور بڑے ضروری ہیں۔ اگلی بات سنیں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابراہیم حسن مراد صاحب جو ہیں، یہ جو ہے ایک پاکستانی ایجوکیشنسٹ ہیں، یعنی انہوں نے تعلیم پر بڑا کام کیا ہے پاکستان میں۔ یہ بہت بڑے تھنکر ہیں، یہ بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں ایجوکیشن کے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انکلوڈس مائنز اینڈ منرلز اینڈ اناؤنس دیٹ اٹک ریجن کنٹینس ایسٹیمیٹ گولڈ ریزروز آف 2.8 million tolas, approximately 32.6 metric tons. These reserves stretches a 32-kilometer area from Attock to Tarbela and Mianwali and were identified through research conducted by Geological Survey of Pakistan. تو
ابراہیم حسن مراد صاحب इन चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं, जियोलॉजी को पाकिस्तान की बड़े करीब से समझते हैं. उन्होंने ये कहा है कि ये जो 32 किलोमीटर का इलाका है जो अटक से तरबेला जाता है और फिर उसके बाद जो है वो आगे जाके जो है वो मियांवाली का इलाका जो कनेक्ट होता है, यानी जो ये सारा जो दरिया है, ये जो इंडस रिवर है जिसमें तरबेला डैम भी आता है, एक तरफ अटक है, एक तरफ बीच में तरबेला डैम है और उसके बाद आगे मियांवाली है. इस इलाके के दरमियान जो 32 किलोमीटर का इलाका है, इस 32 किलोमीटर के इलाके में ये सारे का सारा जो सोना यानी सारे का सारा जो गोल्ड है ये दरियाफ्त हुआ है और ये आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा बेनिफिट दे सकता है. अगली बात सुनिएगा. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो गोल्ड है, क्या ये जो सोना है, ये आज बना है अटक के जो दरिया जा रहा है अटक के पास से, ये तरबेला डैम के अंदर? तो ऐसा नहीं है. उसकी बड़ी वजह ये है कि ये कई लाखों सालों से पानी जो है वो इस इलाके से गुजर रहा है. डैम तो तरबेला बहुत बाद में बना, लेकिन पानी तो इस इलाके से काफ़ी लाखों सालों से गुजर रहा है. तो उसके गुजरने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, इसके अलावा जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके चेंज होने की वजह से कई लाखों सालों की वक्त के बाद, कई लाखों सालों की पेशेंस के बाद इस इलाके के नीचे से सोना दरियाफ्त हुआ है. तो याद रखिएगा गोल्ड को बनने में एक बहुत बड़ा टाइम लगता है और गोल्ड एक तरह से एक नेचुरल सोर्स है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, बट ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, ये बनता है. इसको तकरीबन कई लाख कई करोड़ साल भी लगते हैं बिकॉज ये जियोलॉजिकल एक प्रोसेस की मदद से जो है वो बनता है. अब अगली बात सुनेगा. अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सब लोगों के दिमागों में एक सवाल प्रोड्यूस होता है, सब लोगों के दिमागों में एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो गोल्ड पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगा या इसको रिफाइन किया जाएगा एक्सट्रैक्शन के बाद, क्या ये अभी कर लिया जाएगा? तो इसका जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं. उसकी वजह यह है कि जब भी किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस ज़मीन से निकालते हैं, सबसे पहले उस इलाके की रीडिंग होती है. उस इलाके की रीडिंग में तकरीबन 1 से 2 साल लगते हैं. तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक गोल्ड जो है वो पता लग चुका है कि गोल्ड इस इलाके में है. तो 1 से 2 साल से गालिबन 2023-2024 से इस पूरे इलाके के ऊपर पाकिस्तान अपना जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा था. उसने इन सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा लेबॉर्ट्री में और आखिर आफ्टर 1 ईयर एटलीस्ट या आफ्टर 2 ईयर्स हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई. इसका मतलब है जो पहला मेजर पार्ट है डिस्कवरी का वो तो हो चुका है. अब अगला इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट ये है कि इसके अलावा एक और जियोलॉजिकल सर्वे होगा जिसके मुताबिक सिर्फ उन इलाकों से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा गोल्ड कि जिन इलाकों से पानी की जो डायरेक्शन है उसको असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारा ये इंडस रिवर भी तो जा रहा है ना, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां भी तो इस पे निर्भर है ना. अब इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी इंडस वाटर के अंदर अगर लगेंगी तो इंडस वाटर के अंदर कोई हलचल भी मिल सकती है, कोई फ्लड भी आ सकता है, कोई मामला ख़राब भी हो सकता है. तो ये बड़ा सोच समझ कर और पेशेंस वाला काम है. अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि डिफरेंट कंपनीज को बोला जाएगा, उनको बिड के लिए बुलाया जाएगा पाकिस्तान में कि आप लोग आएँ, आप लोग इन सारे इलाकों को देखें जहां जहां पे गोल्ड है और आप ये बताइए कि आप जो है वो कितनी बिड देंगे. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ठेका देता है, पाकिस्तान बिड देता है, $636 बिलियन का गोल्ड है, तो पाकिस्तान बिड देता है कंपनीज को, अमेरिकन, नेदरलैंड, जापानीज, चाइनीज़ के हम आपको $200 बिलियन की बिड देते हैं या $150 बिलियन की बिड देते हैं या $50 बिलियन की, जो भी एक अमाउंट लगेगी, तो आप इतने पैसे हमें देंगे, जितना गोल्ड होगा वो आपका होगा और उसमें से कुछ शेयर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देंगे, जो एक अच्छी डील है. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान इस सारे के सारे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सके? तो उसका जवाब है अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि पाकिस्तान इतने रिफाइन अंदाज में जो है वो इस गोल्ड को ऐसी जगह से निकाल सके जो बड़ी सेंसिटिव है. क्योंकि याद रखिएगा बीच में तरबेला डैम है, एक तरफ अटक है, एक तरफ मियांवाली है और ये पानी आगे जाके सिंध की तरफ जा रहा है. तो बात यह कि बड़ा टेक्निकल, एक बड़ा सेंसिटिव काम है. पाकिस्तान के पास अभी ये मशीनरी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. अभी 3-4 दिन पहले अमेरिका की रेयर अर्थ मिनरल्स की एक टीम पाकिस्तान आई हुई थी. तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बलूचिस्तान या KPK या गिलगित में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इस तरह की भी टेक्नोलॉजीज अमेरिका ट्रांसफ़र करे और बदले में अमेरिका को पाकिस्तान भी बेनिफिट्स दे, बदले में अमेरिका को पाकिस्तान भी वो सब कुछ दे जो अमेरिका चाहता है, जो अमेरिका को चाहिए. या शायद इस गेम में चाइना भी आ जाए, बिकॉज गोल्ड तो मनी है, गोल्ड तो आने वाले टाइम एक ऐसा एसेट है जिसकी अमाउंट आने वाले टाइम पर बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है. अब बात यह है कि इस सारे मामले को कितना टाइम लगेगा. देखिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र को कम से कम 1 से 2 साल तो लगते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जियोलॉजिकल सर्वे तो हो गया,
अब अगले 5 से 6 महीने में बिड होगी, जो कंपनीज एक्सट्रैक्ट करने की अहलियत रखती होंगी, जो अच्छी बिड देंगी, वो फिर पाकिस्तान में इस सारे इलाके को सर्वे करेंगी। यानी तकरीबन 2027 तक एक प्रॉपर सर्वे होगा कि कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है और कहाँ कहाँ से गोल्ड को निकाला जा सकता है। उससे जियोलॉजिकल इलाके को इशू नहीं होगा, पानी या सैलाब का कोई मसला नहीं होगा। तो 2027 में सर्वे कंप्लीट होगा और 2028 तक ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 28 या 29 तक ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होती है गोल्ड की, तो ये गोल्ड पाकिस्तान की जीडीपी में कब ऐड होना शुरू होगा, पाकिस्तान को बेनिफिट कब आएगा? तो उसका जवाब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बिड कर लेगी कि हम आपको बिड देते हैं 50 अरब डॉलर की या 60 अरब डॉलर की, तो पैसे तो उसी दिन पाकिस्तान को मिल जाएंगे और आगे जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट होगा 8 या 10 साल बाद, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 2 या 3 या 4% शेयर भी पाकिस्तान को मिलता रहेगा। अब लोगों के दिमागों में एक सवाल होगा कि क्यों पाकिस्तान इस गोल्ड को खुद एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको उसकी वजह बता चुका हूं कि अनफॉर्चुनेटली ये मशीनरी बहुत महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है और इन मशीनरीज पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स या गोल्ड की माइनिंग करती हैं, इनकी एक मोनोपोली होती है। ये मशीनरी, ये टेक्नोलॉजी कभी भी किसी को शेयर नहीं करती। अगर ये शेयर कर दें तो इनकी मोनोपोली तो खत्म हो जाए। तो दैट्स वाई ये अपनी इस गेम में हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि चलिए इनिशियली अगर पाकिस्तान को कुछ इन्वेस्टमेंट मिलती है तो इट्स वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी और ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। अगली बात ये है कि इकोनॉमिक बूस्ट के बाद क्या जियोलॉजिकल, क्या एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम होगा, तो बिल्कुल उस चीज़ को देखा जाएगा। एकदम से ये सारा ठेका दिया नहीं जाएगा। 2028 या 2029 तक ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगी और ये एक्सट्रैक्शन तकरीबन अगले 15 या 20 साल तक जारी रहेगी, जब तक पूरे का पूरा सोना एक्सट्रैक्ट नहीं कर लिया जाएगा। और सिर्फ उन इलाकों से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जहाँ से इलाके को आसपास जो रहने वाले रिहायशी हैं उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली लाखों करोड़ों की आबादी पूरे पंजाब में है। उसके बाद करोड़ों की आबादी जो है, मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग राइट नाउ इन सिंध। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगली इंपॉर्टेंट बात है चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए। चैलेंजेस इस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप पानी के अंदर से ड्रिलिंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कई बार फ्लड आ जाता है, आपको अपना काम रोकना पड़ता है, कई बार बारिशें हो जाती हैं, कई बार कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पानी एक बड़ी डेंजरस चीज़ है, लेकिन इससे आपको बहुत बेनिफिट भी हो सकता है, बिकॉज इसके नीचे जो है ये जो गोल्ड है ये कई 100 अरब डॉलर्स का है, जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत आगे लेकर जा सकता है अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। बट नो इशू, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में ये होगा कि ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के पास इतने सारे गोल्ड के रिजर्व्स होंगे तो उसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं तो बाकी इंटरनेशनल कंपनीज़ को एक आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि आपके कंट्री के पास ऐसे एसेट्स हैं जिससे कभी भी आपका कंट्री फॉल नहीं होगा, कंट्री की कभी भी इकोनॉमिक डाउन नहीं होगी, कंट्री की इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स नहीं होगी। सो दैट्स वाई पाकिस्तान के पास ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सही तरीके से समझदारी के साथ यूटिलाइज करे तो पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो अवाम, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। मेज़बान अली उस्मानी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आप ट्विटर पे फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर अकाउंट है @geopol_lab और काइंडली हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट पैट्रियन के लिए बड़ी ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।